کورونا کا زور برقرار، ملک بھر میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 168 تک پہنچ گئی۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 3822 مریض، سندھ میں 2537، خیبر پختونخوا میں 1137 اور بلوچستان میں 376 افراد متاثر۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 8 ہلاکتیں ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے۔ پچھلے 24 گھنٹے ہلاکتوں کے حساب سے سب سے زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران سندھ میں کورونا سے مزید 8 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ لاک ڈاؤن میں آسانیاں کر رہے ہیں، عوام سماجی فاصلوں کا خیال رکھیں، ماسک پہن کر ہی گھر سے نکلیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پیغام۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، پاکستان کا تم لوگوں نے بہت بیڑا غرق کر دیا، سندھ کا بہت بیڑا غرق کر دیا۔ خدا کے واسطے تم حکومت ہو، صرف کرونا نہ کرو، کرونا کا رونا بھی کرنا ضروری ہے، رونا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے باقی معاملات کو بھی چلانا ضروری ہے۔ ارے وزیر اعلیٰ صاحب، اللہ کا نام لیں، یہ ہاتھ جوڑ کے مسکین بن کے معصوم بن کے اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آپ سے کہتے ہیں دوبارہ سے معاف کریں، ڈر نہ پھیلائیں، جھوٹ نہ بولیں، خوف نہ پھیلائیں۔ کہتے ہیں کورونا جیسے لگتے ہیں، مصطفیٰ آپ کہتے ہیں مجھے تو لگتے ہی کورونا کے ہیں۔ سندھ حکومت کورونا کے غلط اعداد و شمار سے سنسنی پھیلا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا الزام، وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات ناکافی قرار۔ صوبائی حکومت عوام کی توقعات پر پورا اترے، وزیر اعلیٰ کو وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیلنے دیں گے، سیاسی بیان بازی سے گریز کیا جائے، رہنماؤں کی گھنگرٹ۔ ٹائیگر فورس ہم نے تو کہیں دیکھی نہیں۔ یہ پھر پولیٹیکل ورکر جو ان کے گنے چنے ہیں، مطلب سندھ کے علاقوں میں، ضلعوں میں، ان کو استعمال کریں گے۔ پھر جماعت اسلامی والے بولیں گے ہمارے ورکرز بھی آ جائیں، پی ایم ایل این کے آدمی بھی ورکرز آ جائیں گے، تو پھر تو ایک پولیٹیکل ایشو بنتا جائے گا۔ سندھ حکومت نے اپنی پارٹی پالیسی یہی ہے کہ کسی بھی سیاسی ورکر کو اس پہ نہیں کرنا۔ سندھ حکومت کا وزیر اعظم کی ٹائیگر فورس کو ریلیف مہم میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ۔ چیف سیکرٹری کے خط سے لا تعلقی کا اظہار۔ ٹائیگر فورس سیاسی کارکنوں پر مشتمل ہے، آپریشن کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا، امتیاز شیخ کا موقف۔ ٹائیگر فورس کسی سیاسی جماعت کی نہیں، پاکستان کی فورس ہے، سیاست سے بالا تر ہو کر کام کرے گی۔ عثمان ڈار کی خواجہ آصف کو بھی شمولیت کی دعوت۔ وفاقی حکومت اور سندھ کی حکومت ایک پیش پر نہیں ہے، ساری سیاسی قیادت اور سرکاری قیادت مل کر اس وبا کے ساتھ لڑتی، اور لیکن وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور وزراء جو ہے وہ اس میں مزہ محسوس کرتے ہیں، لطف لیتے ہیں کہ اس وقت بھی وہ اپوزیشن کے خلاف بیان دے کر کرونا وائرس کو شاید خوش کرنا چاہتے ہیں۔ الزام تراشیوں کا بازار گرم، وفاق اور سندھ حکومت ایک پیج پر نہیں، لگتا ہے وفاقی وزراء اپوزیشن کے خلاف بیان دے کر کورونا کو خوش کر رہے ہیں، حکومت کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، سراج الحق کی تنقید۔ تمام صوبوں کو ساتھ فیڈریشن کے مل کے چلنا چاہیے۔ ہوڈنگ کے آرڈیننس میں آپ سمجھیے کہ جو چیدہ شیڈولڈ آرٹیکلز ہیں، جس کے اندر ویٹ ہے، شوگر ہے، فلار ہے، اس کی اگر کوئی ہوڈنگ کرے گا تو اس کے لیے سخت سزائیں ہیں۔ عام آدمی کی مشکلات کے لیے قانون سازی جاری، کسی کو موجودہ صورتحال سے فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے، اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے آرڈیننس تیار، ذخیرہ اندوزوں کو بھی سخت سزا ملے گی، فاروق نسیم کی پریس کانفرنس۔ خیبر پختونخوا میں کورونا نے زور پکڑ لیا، ایک ہی روز 10 افراد جاں بحق، مہلک وبا سے مرنے والوں کی تعداد 60 ہو گئی۔ پشاور سب سے زیادہ متاثر، 300 سے زائد مریض زیر علاج، حفاظتی تدابیر ناگزیر قرار۔ لاہور میں کورونا کے مزید 29 مریض صحت یاب،
सूबे भर से 680 अफराद ठीक होकर घरों को जा चुके। अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हुकूमत का साथ दें, डॉक्टर यास्मीन राशिद की अपील। पंजाब भर में लॉकडाउन, लोगों को घरों तक महदूद रखने के लिए शहर शहर फौजी जवानों और पुलिस एहलकारों के नाके। बिला जरूरत बाहर आने वालों से पूछताछ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी पाबंदियां बरकरार। कराची वाले एक माह बाद भी लॉकडाउन का मतलब न समझ सके। समाजी दूरी समेत तमाम हिफाजती तदाबीर नज़रअंदाज। शहरी बिला ज़रूरत हर वक्त घर से निकलने को तैयार। नाकों पर जुर्मानों और सज़ा से बचने के लिए बहानेबाजी। गलती हो गई है ना मुझसे। तो बेटे को लेने के लिए गया था, 5-6 दिन से गया हुआ, नानी घर पे गया हुआ था। इसको हॉस्पिटल लेके गया था अपनी वाइफ को। बच्चे को माँ के पास छोड़ना, 2 दिन से ये हमारे पास था, मेरे वालदा के पास था, तो इसको माँ के पास छोड़ने जा रहे हैं। जब वफाक ने नहीं कहा तो फिर काहे का लॉकडाउन है? मजबूरी है ना, हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही हमारे लिए। काम था, अब जा रहे हैं ना घर पे, काम तो आए हुए थे, यहाँ मसला हो गया तो रुक गए, अब जा। लॉकडाउन के मामले पर ट्रंप और डेमोक्रेट गवर्नर्स में तनाव। अमरीकी सदर के मिनीसोटा और वर्जीनिया को पाबंदियों से आज़ादी के ट्वीट पर रद्द अमल। हामी सड़कों पर आ गए। मईशत फौरी खोलने का मुतालबा। मुहलिक वायरस के खिलाफ अच्छी खबर। वबा एबोला की दवा ने कोरोना के खिलाफ भी काम दिखा दिया। अमरीका में तजुर्बाती दवा लेने वाले मरीज तेजी से सेहतयाब। अमरीकी इदारे सेहत की जानवरों में भी दवा के तजुर्बात कामयाब होने की तस्दीक। नाजियों जैसे इकदामात कर रही है, वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। भारत में सब्जियां और फल बेचने वालों से मजहब पूछकर खरीदारी। मोदी ने मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी। भारत इंतहा पसंदी की आग में जलकर राख हो जाएगा, फयाजुल हसन चौहान। रमजान मुबारक के दौरान मुसलमान ममालिक में हुकूमत समाजी फासलों पर जोर दे तो शहरी महदूद रहें। नमाज भी घर पर अदा करें। लोगों की जिंदगियां बचाने का अमल इंसान को अल्लाह ताला के करीब करता है। सऊदी उलमा कौंसिल का पैगाम। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्ज़ाम। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ को फिर 22 अप्रैल को तलब कर लिया। कोरोना के पेश नज़र मुकम्मल हिफाजती इक़दामात की यकीन दहानी। कोरोना से अमवात जारी। नैब को शहबाज शरीफ का गम खाया जा रहा है। इस वक्त सियासी इंतकाम नहीं, अवाम की मदद तरजीह होनी चाहिए। लीगी सदर के तमाम असासाजात बैंक अकाउंट्स कानून के मुताबिक हैं। मरियम औरंगज़ेब। फोरेंसिक रिपोर्ट 25 से 5-10 दिन लेट हो सकती है, आएगी ज़रूर। अगर नहीं आएगी तो फिर अगर ज़्यादा देर से होगी फिर भी लोग बातें करेंगे, और आएगी। और आईपीपी के चोर, कर्जा माफ़ कराने वाले चोर, और शुगर और फ्लोरिंग के चोर इंशाअल्लाह ताला अपने मकाम पर पहुँचेंगे। फोरेंसिक रिपोर्ट 5 से 10 दिन लेट होने की पेशगोई। चीनी चोर मंतकी अंजाम को ज़रूर पहुँचेंगे। कर्ज लेने वालों की रिपोर्ट लीक हो चुकी। ये हुकूमत का इम्तिहान है। लंगड़ी लूली ऑपोजिशन सिर्फ लैपटॉप के आगे बैठी है। शेख रशीद की तनकीद। रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिकीन को बराह रास्त माली इमदाद दी जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब की सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल से मुलाकात में गुफ्तगू। पकड़े जाने पर ज़ख़ीरा शुदा माल जब्त, 50% जुर्माना।
3 साल कैद की सजा, गलत मालूमात देने वाले को भी जेल जाना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। कराची में SIU और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई, अफगानिस्तान से तरबियत लेने वाले 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा, बारूद और अहदाफ की फहरिस्त बरामद। लेन देन का तनाज़ा, फैमिली के साथ दोस्त को मिलने डस्का गया लाहौर का रिहायशी, बीवी और 2 बच्चों समेत कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार, लाशें BRB नहर में फेंकने का एतराफ़। वबा के दिनों में भी जराइम पेशा अफराद का राज, फैसलाबाद में पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात, मुसल्लह अफराद का गार्ड पर तशद्दुद, जख्मी कर दिया। CCTV फुटेज दुनिया न्यूज़ पर। काम करना नहीं करना ना करो, बदतमीजी भी करने चाहिए। अगर तुम करोगे ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चाहे तुम्हारा IG आ गया ना तो तुम्हें थाने से पकड़ लूंगा तुम्हें। कोई मोटर बदतमीजी नहीं करनी लोगों से। हाँ नहीं छोड़ो यार, बदतमीजी पब्लिक से नहीं करेगी। पुलिस मोटरसाइकिल नहीं छोड़ रही, मुल्तान में कारकुनों की शाह महमूद कुरैशी को शिकायत, किसी सूरत बदतमीजी कबूल नहीं, वज़ीर ख़ारजा SHO पर बरहम, सरजनिश भी कर दी। जान बहक होने वालों की तादाद 168 तक पहुंच गई है। मुतासिर अफराद की तादाद 8348 है। पंजाब सबसे ज्यादा मुतासिर है, यहाँ पर मरीजों की तादाद 3822 हो गई है। सिंध में केसेस की तादाद 2537 है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पर 1137 यहाँ पर मरीज हैं और बलूचिस्तान में 376, गिलगित बल्तिस्तान में 257, इस्लामाबाद में 171 और आज़ाद कश्मीर में 48 केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। 1868 अफराद तंदुरुस्त हुए हैं। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में कोरोना मैनेजमेंट सेंटर से मजीद 15 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिसके बाद वो घरों को रवाना हो गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि मुल्क भर में कोरोना का वार जारी है और वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 8000 से भी तजावुज़ कर गई है। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मरीज़ अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं। यहाँ पर मरीज़ों की तादाद 3822 हो गई है। सिंध हुकूमत ने टाइगर्स फोर्स को रिलीफ ऑपरेशन में शामिल ना करने का फैसला कर लिया है। चीफ सेक्रेटरी के डिप्टी कमिश्नर्स को खत से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। इम्तियाज शेख ये कहते हैं कि टाइगर्स फोर्स सियासी है, वैसे भी ये सूबे में कहीं नजर नहीं आती। टाइगर फोर्स सिंध में काम करेगी या नहीं, मामला मुतनाज़ हो गया। सिंध हुकूमत ने टाइगर फोर्स को रिलीफ सरगर्मियों में शामिल करने से इनकार कर दिया। चीफ सेक्रेटरी के सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स के नाम खत से लाताल्लुकी का इजहार भी कर दिया। टाइगर फोर्स सियासी है, सिंध रिलीफ ऑपरेशन के सरबराह इम्तियाज शेख ने साफ साफ बता दिया। टाइगर फोर्स हमने तो कहीं देखी नहीं। ये पॉलिटिकल वर्कर जो उनके गिने चुने हैं, मतलब सिंध के इलाकों में, जिलों में, उनको इस्तेमाल करेंगे। फिर जमात इस्लामी वाले बोलेंगे हमारे वर्कर्स भी आ जाएं, फिर और दूसरी PMLN के आदमी भी वर्कर आ जाएंगे, तो फिर तो एक पॉलिटिकल इशू बनता जाएगा ना। पार्टी पॉलिसी यही है कि किसी भी सियासी वर्कर को इससे नहीं करना। दूसरी तरफ उस्मान डार का कहना है कि टाइगर फोर्स सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर काम करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में मुआविन खुसूसी ने ख्वाजा आसिफ को सियालकोट में फोर्स को लीड करने की दावत भी दे दी। मुझे उम्मीद थी कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स जो है इसमें सिंध हुकूमत इस पर मिलकर हमारे साथ काम करेगी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ टाइगर फोर्स किसी भी सियासी जमात से बालातर होकर एक कौमी जज्बे के साथ, और ये जो लाखों 10 लाख नौजवान जो टाइगर फोर्स का हिस्सा बन चुके हैं पूरे पाकिस्तान में, अपने अपने सूबों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में और अपने अपने शहरों में मुतहरक होंगे। हफ्ते के रोज चीफ सेक्रेटरी सिंध ने टास्क फोर्स से मुतालिक वज़ीर आज़म हाउस से आए अहकामात तमाम अजला के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को इरसाल किए थे। उधर सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं कि अवाम को लॉकडाउन के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। अंदरून शहर सब कुछ खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान का बहुत बेड़ा गर्क कर दिया, अब इंसानों की खिदमत कर लें। हलीम आदिल शेख की जानिब से कहा गया कि वजीर आला सिर्फ खौफ फैलाने के मिशन पर लगे हैं।
छुट्टी के रोज भी सियासत की छुट्टी ना हुई। पीटीआई रहनुमाओं ने इंसाफ हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिंध हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर न छोड़ी। उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, पाकिस्तान का तुम लोगों ने बहुत बेड़ा गर्क कर दिया। इस सिंध की हुकूमत से करप्शन ख़त्म करो, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को दुरुस्त कर लो, तुम जो है अपने हस्पतालों को दुरुस्त कर लो, तुम जो है शहर कराची को पानी दे दो, तुम सिर्फ कोरोना ना करो। हलीम आदिल शेख का कहना था कि वजीर आला सिंध सिर्फ खौफ फैलाने के मिशन पर हैं। अफरा तफरी फैलाकर सिंध के वजीर आला साहब कहते हैं कि सिंध का रेशो तो दुनिया से ज़्यादा बढ़ गया। तो भाई खौफ फैलाकर हासिल क्या करना चाहते हैं, मुझे इसका जवाब नहीं मिल पाया। वज़ीर आला साहब अल्लाह का नाम ले, ये हाथ जोड़ के मिस्कीन बन के मासूम बन के अब क्या करना चाहते हैं। हम आपसे कहते हैं दोबारा से माफ़ करें, डर ना फैलाएं, झूठ ना बोले, खौफ ना फैलाएं। पीटीआई रहनुमाओं का कहना था कि कोरोना के मामले में विफाक ने हिकमत से काम लिया, सबसे ज्यादा इमदाद सिंध हुकूमत को दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ये कहते